So friends, let me welcome you. My name is Deepak and I am the host of this webinar session. And I'm representing SAS Online, India's deep discount broker. And on behalf of SAS Online, I would like to welcome you and I would like to thank you from the bottom of my heart on joining this session. So friends, as you know, today we are having a session on a very interesting topic. What are the necessary requirements for a successful trading? And to start that session, to have that session, we have a very special guest with us, Mr. Rohit Katwal. So let's welcome Rohitji. Rohitji, I want you to join us, please. I think I am present here with you. Good afternoon. Yeah, I'm giving you access. You just need to accept. Good evening, everybody. So I think I am audible now. Yeah. Yeah, you are audible as well as visible, Rohitji. Okay. So friends, I'm talking about the language of this session. We will try to keep a mix like both in English and Hindi. Talking about the level of this session, this would be a session with the level of, let's say, basic to intermediate. And before starting this session, I would like to have something about SAS Online with you. I would like to share. See, friends, SAS Online, we are India's deep discount broker, and we disrupted the market 10 years ago with our 999 monthly subscription plan. So this is a very successful plan. And talking about the numbers, right now we are having approx 60,000 clients. We are having a very good number in terms of daily turnover, more than 1 lakh crore per day. Talking about the executed order per day, we are having number of more than 3 lakhs order being executed through our platforms on a daily basis. So friends, this is a little bit about SAS Online, and if we talk about the platforms, we are offering one of the fastest, most reliable, most user-friendly platform available in the country today, that is Alpha. We are coming with Alpha Mobile, we have Alpha Web, Alpha Trader, and for Pro Trader, we are also offering Nest Trader. So these about our platform. And if we're talking about the plan, so guys, यहाँ पे पूरी flexibility है. One can choose plan that suits to their requirement. Like we are having 9 rupees per trade plan. We are having 999 rupees monthly subscription. And recently we introduced a plan for the pro traders with the 1999 per month. And in this plan, we are offering to get you your bank interest on cash lying in your trading account. So this is very much a user trader friendly plan. So one can opt whatever they feel good for them. So let's start the session with the Rohit Katwal, and it is my pleasure to have you, Rohit, here. Deepak ji, it's always a pleasure to have a discussion with you. So I'm at your disposal. I think people have joined, so all good from my side. Yes, we have good attendance, and I would like to share something about Rohit ji. Rohit ji, well-known industry trainer, a option strategist, और काफी सालों से, लगभग 10-12 साल से रोहित जी मार्केट में है. और ट्रेडर फर्स्ट एंड ट्रेनर सेकंड. ट्रेडर फर्स्ट, ट्रेनर सेकंड. फर्स्ट एंड ट्रेनर सेकंड. I think of it like this कि ठीक है, अगर कल को सारा कुछ उठाना पड़ जाए, पीछे क्या रह गया? सिर्फ एक ट्रेडिंग का स्किल है और कुछ नहीं रह जाता. सही बात है. तो रोहित सर, आज के इस सेशन में जो टॉपिक हम लेके चल रहे हैं, जहां पे हम बात करेंगे कुछ प्रीरिक्विजिट की जो एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनती है. उसमें हम बात करने वाले हैं पोजीशन साइजिंग की, उसमें हम बात करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट की, और सबसे इंपॉर्टेंट उसमें हम बात करने वाले हैं विनिंग प्रोबेबिलिटीज की. तो एज ए लेमैन अगर मेरे को मालूम बात करनी है कि इसके अलावा या फिर इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए क्या हो सकता है, या फिर किस ऑर्डर में बात करेंगे, किसको कितना वेटेज देना है अपनी डे टू डे ट्रेडिंग में, तो सर इस चीज के लिए आप प्लीज बताइए. और जस्ट ओवर टू यू.
मैं इसको ना, आई विल ट्राई टू कीप दिस इनटू एज लेमन टर्म्स एज आई कैन। ओके, नाउ एक सिंपल सा बिजनेस लेते हैं, फॉर एग्जांपल स्टेशनरी का, ठीक है। स्टेशनरी शॉप जो स्कूल्स के आगे होती है, वेयर अ पर्सन कैन बाय अ नोटबुक, a sellotape, a pen, a pencil. Let's take an example of a pen. What that person does is he has a Rotomax pen of 5 rupees. He has um, Reynolds pen of 5 rupees. Okay, he has some butterfly pen of 10 rupees. Then he has a 20 rupees gel pen, 25 rupees jetter maybe, and then he goes on to Parker. Okay. Now what happens is वो इन सारों को अपने पास स्टॉक करता है, ठीक है, एंड देन जब तक उसका बाय किया हुआ स्टॉक उसके एमआरपी के ऊपर नहीं निकलता, ठीक है, जिसके अंदर उसका प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है, ही कीप्स इट विद देम। जो स्टॉक उसका लगता जाता है उस स्टॉक को वो परचेज करके अपना रीस्टॉकिंग करता रहता है, उसका ज्यादा माल लेके आता है, ही कैन कीप सेलिंग इट विद प्रॉफिट। द पेन दैट इज नॉट गेटिंग सोल्ड, उसके अंदर वो स्टॉक आगे से आगे कम डालता है। एंड कई बार ऐसा भी होता है बिकॉज स्टॉक एक जगह ले रहा है उसकी शॉप के ऊपर, या फिर खराब हो रहा है पड़ा पड़ा, इट माइट बी पेरिशेबल, उसके रिफिल्स खराब हो रहे हैं कुछ भी, ही माइट हैव टू सेल इट एट डिस्काउंट, ठीक है। तो यहाँ पे यही एक कंसेप्ट आ जाता है स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। मैनी पीपल, यू नो, इन माय ऑफिस एनीबडी कैन कम एंड हैव अ डिस्कशन विद मी एंड यू वोंट बिलीव कितने लोग मेरे पास आते हैं, दे हैव अ कैपिटल ऑफ 20,000 एंड दे टेल मी सर हम ऑप्शन ट्रेडिंग करने आए हैं। वो मुझे नहीं बताते कि हमारी कैपिटल 20,000 है, बट मैं उनसे पूछता हूँ कि आपकी कैपिटल आई थिंक 20,000 है, बिकॉज लोगों को senseless SMS आते हैं that you know you can make your money double, you can make options are getting double, 10 की 20 हो जाती है, 100 की 200 हो जाती है, ठीक है, we can give you calls and their expectations are very wrong. They forget that it is not a dream 11 game that we are playing, but it is gambling, okay। तो हमें ट्रेडिंग करनी है, we have to take it as a business, ठीक है। now सबसे पहले इसके अंदर हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस स्ट्रेट करनी होती हैं, हमें एक प्रॉपर कैपिटल चाहिए होती है जिससे हमें ट्रेड करना है। उस कैपिटल के बाद हमने कितना स्टॉक लेना है, किस प्राइस पे निकालना है, किसको हमने दोबारा से दोबारा परचेज करना है, बार बार बाय करना है और बार बार सेल करना है, किसको नहीं बाय करना, किसको नहीं सेल करना, वो सब चीजें बाद में आ जाती, ठीक है। So the topic that we are going to talk about tomorrow is probabilities, position sizing, and risk management. The people who have joined with us today, they might have read many books, and if you can remember those books, you will see that the probabilities, position sizing, and risk management chapter is in every trading book, is in every technical analysis book, but the kind of emphasis that is given to that book is the least. सबसे ज्यादा कम प्रायोरिटी उसको दी जाती है, ठीक है। जब मैंने अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, हमें पहले तो ये लगता था कि हमारे पास जो एक मनी फ्लो है, कैपिटल है, मेरे जो जिससे मैंने ट्रेड करना है वो अनलिमिटेड है। ऐसा नहीं होता, हर किसी के पास एक फाइनाइट कैपिटल है। तो जब भी आप एक बाय या सेल का ऑर्डर लगाने लगे हो, यू हैव टू बी वेरी श्योर कि मुझे क्या बाय करना है, कितने का बाय करना है, कितने का रिस्क लेना है, कहाँ पे मुझे प्रॉफिट बुक करना है और कहाँ पे मुझे इस मार्केट के अंदर से बाहर बैठना है। पर होता क्या है, आप 1 लाख रुपया मार्केट में लेके आते हो एंड देन यू बाय द स्टॉक विद दैट पर्टिकुलर 1 लाख, लेट्स से आपने 100 स्टॉक्स बाय कर लिए और अब आप उसकी विश करते हो कि वो ऊपर जाना शुरू कर दे, ठीक है। एंड होता क्या है, यू कट इट आउट एट 5,000 लॉस, फिर आप 95,000 से परचेज करते हो, अब वो ऊपर जाता है, बट आप क्या करते हो, 3-4,000 की प्रॉफिट के ऊपर उसको 98,000 के ऊपर जाके कट करते हो। व्हाट हैज हैपेंड इज, अब आपको पता चलता है कि मार्केट के अंदर एक ट्रेडिंग की साइकोलॉजी भी होती है। तो जो एक एवरेज ट्रेडर है जब वो मार्केट में आता है, उसकी सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन क्या होती है कि एक तो उसको कोई ट्रेडिंग की कॉल्स देगा, देन ही कैन बी प्रॉफिटेबल, वो कोई मैजिकल इंडिकेटर यूज करेगा, देन ही विल बी प्रॉफिटेबल, उसके बाद ज्यादा कैपिटल होगी, देन ही विल बी प्रॉफिटेबल। दीज आर द काइंड ऑफ मिथ्स that flow around in the market. That is why जब भी कोई नया ट्रेडर he is entering into the market, he must understand
कि what is the meaning of probabilities with respect to trading, what is position sizing and what is risk management. and अगर आप कुंडली दिखा के भी अपनी ट्रेडिंग करनी शुरू कर दोगे ना, अगर आपको ये 3 कंसेप्ट्स पता है, यू कैन बी प्रॉफिटेबल फ्रॉम ट्रेड, बट अगेन इट रिक्वायर्स डिसिप्लिन, दैट इज द ओनली। तो इतना सा इसके अंदर जरूरत होती है। So this is what today's presentation is about. Should we start? Yes, Rohit, good to go. Okay. So that is why we are going to learn about probabilities, position sizing and risk management. ठीक है? Now जब भी कोई बंदा ट्रेडिंग में आता है, उसका सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि हमें ट्रेडिंग करने के लिए एक ऐसा मेथड चाहिए जिससे हमें हमेशा प्रॉफिट बन सकता है, जिसे हम लोग हॉली ग्रेल कहते हैं। बट सिंस यू ऑल पीपल आर हियर विद मी, आप में से कई ऐसे भी होंगे जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं, ठीक है। Have any of you ever find any holy grail trading system? होली ग्रेल मतलब है जो कभी फेल नहीं होता, जिसके ऊपर आपको प्रॉफिट ज्यादा होते हैं, ठीक है, लॉसेस कम होते हैं और उसकी विनिंग बहुत ज्यादा अच्छी है। Have any of you found a system जो इन तीनों पैरामीटर्स के ऊपर हमेशा अच्छे से वर्क करता है? It's an open question. You can put it in the answers. I'm reading it here. ओके, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जितने भी लोग ट्रेडिंग करते हैं उनकी एक ही खोज है कि हमें होली ग्रेल ट्रेडिंग सिस्टम चाहिए जहां पे प्रॉफिट्स इंक्रीज हो, लॉसेस डिक्रीज हो और विनिंग रेशियो हमेशा ज्यादा हो, ठीक है। इसी उम्मीद के अंदर आई होप सिस्टम्स फ्रॉम 2009 to 2012 एंड आई लॉस्ट a lot of money, so much money that my account went empty 5 times, ठीक है। it went empty 5 times, ठीक है। मुझे लगता था कि मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, ठीक है। एवरी टाइम मेरा ड्रॉ डाउन होता था 1 लाख का 5,000 रह जाता था, मैं और मनी फिल कर देता था, चाहे मैं अपनी फैमिली से ले रहा था, चाहे मैं लोन डाल के ले रहा था, ठीक है ना। बट अनटिल एंड अनलेस मेरा सारा का सारा जो कैश रिजर्व था वो एम्प्टी नहीं हो गया, तब तक मुझे पता नहीं चला इस बात का दैट जो ये डॉलर्स है ना, जो ये मनी है आपके पास, ये एक फाइनाइट क्वांटिटी में है। ये ऐसी चीज है, अगर आपकी एक बारी खत्म हो गई, कोई आपको फिलअप नहीं करेगा आके, ठीक है ना। आई फॉरगॉट कि जो ट्रेडिंग है इट मस्ट बी डन लाइक अ बिजनेस, ठीक है। ठीक है, सो 2012 से लेके 2016 तक मेरे पास कोई पैसा नहीं था ट्रेड करने के लिए। मुझे प्रैक्टिकली उसके अंदर जॉब करनी पड़ रही थी अपने आप को सरवाइव करवाने के लिए, ठीक है। बट द पॉइंट इज कि मुझे मार्केट से बहुत ज्यादा प्यार था, दैट इज व्हाई आई नेवर क्विट ऑन इट। 2016 में जाके 2012 से लेके 2016 तक व्हाट आई डिड वाज कि एट द एंड ऑफ द डे मैं अपना सिस्टम लेके बैठता था एक्सेल के ऊपर और डेमो ट्रेडिंग करना शुरू कर देता था। जब मैं डेमो ट्रेडिंग करता था तो उसके अंदर मैंने अपने पास एज्यूम कर लिया हुआ था कि मेरे पास एक 10 लाख की कैपिटल है, उसके थ्रू मैं ऑप्शंस को ट्रेड करूंगा। दिस इज द ऑप्शन आई एम गोइंग टू सेल, दिस इज माय गोइंग टू बी माय क्वांटिटी, ठीक है। और इस तरीके से मैं ट्रेड करूंगा जिस दिन मेरे पास पैसा आएगा। नाउ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सिंस आई हैड नो मनी, दिस वाज द ओनली थिंग दैट आई कुड डू, बिकॉज मेरे पास एक लैपटॉप था और मेरा एक चार्टिंग सॉफ्टवेयर था, ठीक है। ये जो पेपर ट्रेडिंग करने वाला काम है ना, डेमो ट्रेडिंग करने वाला काम है, ये मुझे सबसे पहले करना चाहिए था स्टार्टिंग में, विच आई वाज डूइंग आफ्टर आई हैड नो मनी। मैंने बताया ना, नोबडी इज गोइंग टू लेंड यू मनी वंस यू हैव फिनिश्ड योर्स, ठीक है। सो ये टाइम जो था मेरे लिए बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था, ठीक है। तो बिफोर ट्रेडिंग यू अंडरस्टैंड दैट हाउ यू आर गोइंग टू ट्रेड, आपने ट्रेड किस तरीके से करना है, ठीक है। और उससे आपको ये पता चलेगा कि आपको सक्सेस मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, ठीक है। मैंने जिस वक्त ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तो वो पीरियड 2009 का था। इस टाइम पे मार्केट यहाँ से इस तरीके से क्रैश की थी और रिकवर कर रही थी, ठीक है। जब मार्केट रिकवर कर रही होती है ना, फॉर एग्जांपल कोविड के बाद, आप जो भी बाय करते थे वो ऊपर जाके आप सेल कर देते थे, आपको पहले 5-6 महीने प्रॉफिट होता है,
बट जब मार्केट इस तरीके से चॉप चॉप चलनी शुरू हो जाती है ना, अपने नॉर्मल रूटीन में आ जाती है, जितना आपने बनाया होता है वो सब लुट जाता है उस चीज के अंदर, ठीक है। मैक्सिमम पीपल हु कम इनटू ट्रेडिंग, उनका सबसे पहला काम क्या होता है, दे गो फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में उनको क्या होता है, दिन के 500 रुपए बन जाए, 1000 रुपए बन जाए, 10,000 रुपए बन जाए, इतनी कैपिटल से मेरा दिन पार है, पूरी लाइफ ऐश करूंगा, अपना लैपटॉप लेके, इंटरनेट लेके, आई जस्ट रोम हियर एंड देयर एंड लाइफ एंजॉय करूँ, ठीक है। बट उसको फिर पता चलता है कि इंट्राडे में इतना आसान नहीं है, देन ही कम्स टू स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर उसका टाइम फ्रेम इंक्रीज हो जाता है, स्विंग ट्रेडिंग से फिर वो इन्वेस्टर बन जाता है, और फिर जब पैसे खत्म हो जाते हैं देन ही सिट्स ऑन द साइड लाइन, ठीक है। तो इस सारे बैक टेस्ट के पीरियड में मुझे कुछ बातें समझ में आई जो आपको समझनी जरूरी है, ठीक है। आपको फर्क समझना पड़ेगा आपकी एज्यूम्ड कैपिटल के बीच में और एक्चुअल कैपिटल के बीच। इसका मतलब ये है, आपको लगता है कि यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग विद लेट्स से 1 लाख, बट क्या 1 लाख से ट्रेडिंग करना, इज इट पॉसिबल फॉर यू? जिस तरीके से आप ट्रेडिंग करते हो, फॉर एग्जांपल मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है, मैं बाय भी करता हूँ पोजीशन स्विंग ट्रेड के अंदर, मैं सेल भी करता हूँ, ठीक है। अगर मैं सिर्फ बाय करता हूँ तो मेरे लिए 1 लाख इज इनफ टू टेक अ ट्रेड, ठीक है। बट अगर मैं सेल करता हूँ पोजीशन, ठीक है, गिरती मार्केट के अंदर मैं प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ, देन इट मींस मुझे फ्यूचर्स में ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इक्विटी को सेल नहीं कर सकता। दैट मींस जो 1 लाख की कैपिटल है दैट इज लेस फॉर। सेकंड, इसके अंदर कंसिडरेशन ये आ जाती है, कई लोग बोलते हैं कि हमें ट्रेडिंग करके अपना खर्चा चलाना है। दैट मींस अगर आपका खर्चा, अगर मैं एज्यूम करूं 20,000 का भी है, 1 लाख की कैपिटल के ऊपर if you want to make 20,000 that is going to be 20%. now FD आपको 7% देती है करंट, कंपनीज के बॉन्ड है 9% देते हैं, गोल्ड बॉन्ड है 8% के अराउंड देते हैं, ठीक है। इज इट पॉसिबल कि आप अपनी कैपिटल के ऊपर 20% बना सकते हो? दिस इज अ रियलिस्टिक क्वेश्चन दैट यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, बिकॉज 20% मंथली बनाने का मतलब है जो आपकी रिटर्न है एक साल की, वो 300-400% हो जाएगी। एंड म्यूचुअल फंड्स वाले ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर 15% की भी CAGR दे देना तो वो भी अपने आप को कहते हैं कि हम लोग एक सक्सेसफुल म्यूचुअल फंड है। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपकी 20,000 की कैपिटल है, सॉरी रिक्वायरमेंट है, और आप ट्रेड कर रहे हो 1 लाख से, आपकी ये वाली कैपिटल बहुत कम है, आपको लगता है कि 1 लाख से काम हो जाएगा, बट नहीं होने वाला। तो पहले तो ये डिसाइड करो कि आपकी कैपिटल कितनी होने वाली है, एग्जैक्टली आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर आपको 20,000 कमाना है, दैट मीन्स यू नीड समवेयर अराउंड 10 लाख रुपीज और 6 to 7 lakh rupees to make that 20,000, because then it will be per month 1 to 3% that you need to earn from the market. 1 to 3% is still conservative if you want to trade with a system. दूसरी चीज आ जाती है, जो नए ट्रेडर सबसे ज्यादा गलती करते हैं, वो पिकअप करते हैं एक इंडिकेटर को, वो उठाएंगे RSI को, ठीक है। उनको लगेगा मैंने RSI का इंडिकेटर देख लिया, मैंने MACD देख लिया, सिर्फ इन दोनों इंडिकेटर्स की वजह से, या फिर लेट्स से ADX, मुझे होली ग्रेल मिल गई। अब जब RSI ऊपर को जाता है उस टाइम पे बाय कर लो, जब नीचे को आता है सेल कर दो। कभी भी आपके दिमाग में you have any method which you think can turn your trading into a profitable trading, always paper trade it. Take 100 trades with it on Excel and you will understand कि जो भी सिस्टम आपको लगता है कि वो वर्क करेगा, मैक्सिमम टाइम वो फेल हो रहा हो। हमारे सामने 3 ट्रेड्स होती हैं जो बहुत अच्छी चल जाती हैं, ठीक है। आप बाय करते हो, वो ऊपर चल जाती हैं, आप देखते हो कि RSI ऊपर जा रहा था एंड यू थिंक कि इसकी वजह से मुझे प्रॉफिट मिला है, एंड देन व्हाट यू डू, आप 2 लाख रुपया लेके आते हो, नेक्स्ट टाइम आप अपनी ट्रेड लगाते हो और वहीं से मार्केट टर्न कर जाती है। तो बैक टेस्ट करके व्हाट आई केम टू अंडरस्टैंड वाज
कि जो भी मैं अपना ट्रेड लेता था आई वाज आइदर ब्रेक इवन और आई वाज इन माइनर प्रॉफिट और इन माइनर लॉस, बट मेरा कोई भी मेथड जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं। तीसरी चीज मुझे क्या पता चली कि जब मैंने अपनी ट्रेड्स को सैंपल किया, आउट ऑफ 100 ट्रेड्स 40 ट्रेड्स वर रॉन्ग। 40 ट्रेड्स का रॉन्ग होने का मतलब क्या है, जो मेरी विनिंग प्रोबेबिलिटी थी दैट वाज जस्ट 60%। बट नाउ द क्वेश्चन कम्स, इफ आई वाज विनिंग 60% ऑफ द टाइम, मैं प्रॉफिट किस तरीके से नहीं बना रहा था, व्हाई वाज आई गेटिंग लॉस? उसका रीजन ये था कि द ट्रेड्स वेयर आई लॉस्ट मोर वाज बिगर ऑन क्वांटिटीज। ठीक है, सो होता क्या था, जब मेरी ट्रेड सही जानी शुरू हो जाती थी मेरे पास क्वांटिटी 100 की होती थी, जब मेरी ट्रेड लूज कर रही होती थी मेरे पास क्वांटिटी 200 की होती थी। ठीक है, और मेरे क्या रीजंस निकले कि व्हाई आई एम नॉट गेटिंग सक्सेसफुल इन ट्रेडिंग? और रीजंस ये थे कि अगर मैंने कोई चीज 100 के ऊपर बाय की है ना, और मैंने 100 की क्वांटिटी पे बाय की हुई है, जैसे ये 102 के ऊपर पहुंचती थी ना चीज, 100 से 102 के ऊपर, इमीडिएटली एक लालच आना शुरू हो जाता था कि यार 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, टेक इट टेक इट टेक इट। एंड द मोमेंट आई एग्जिट फ्रॉम इट टेकिंग अ 2 रुपीज प्रॉफिट, ये 102 से 108 तक चल जाती थी। और मुझे लगता था यार कहाँ पे मैं 8 रुपए कमा सकता था, बट मैंने कमाए सिर्फ यहाँ पे 2 रुपए। ये प्रॉब्लम हो रही थी। अब इससे फर्क क्या पड़ा, इससे फर्क ये पड़ा, नेक्स्ट टाइम जब मुझे यहाँ पे ये ट्रेड 100 की मिली, मैंने 100 पे परचेज किया, ये 102 पे पहुंची, इस बारी मैंने बुक नहीं किया, मैंने कहा ना ये तो 108 तक जाएगी। बट हुआ क्या, ये 102 से 103 तक गई और यहां से टर्न करके इसने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। कैन यू रिलेट टू दिस पर्टिकुलर स्टोरी कि ये किस तरीके से वर्क करता है? कोई भी आप लोगों में से ट्रेडर है जिसको समझ में आ रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं, हाउ द मार्केट हिट्स यू? आई एम जस्ट कीपिंग एन ओपन सेशन हियर। कंफर्म करो मुझे एक बार, व्हाट आई एम टेलिंग यू, यू आर गेटिंग इट? Deepak ji, can we open the comments for a moment here? The point I'm trying to make, are you getting it? कि किस तरीके से मार्केट आपको हिट करती है। ये सारी की सारी चीजें आपको तब पता चलेंगी when you have done paper trading, और उस पेपर ट्रेडिंग में you have actually taken 100 demo trades। 3 ट्रेड से पता नहीं चलता कि आपका सिस्टम प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा। आपको 100 ट्रेड्स लेनी पड़ेंगी, दैट विल टेल यू कि मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ। ठीक है, तो इस सारे बैक टेस्ट से मुझे ये पता चला कि स्टॉक मार्केट के अंदर इंडिकेटर्स आपको पैसा नहीं देते। ठीक है, मेथड आपको पैसा नहीं देता। ठीक है, आपको पैसा देता है हाउ यू आर मैनेजिंग द रिस्क, हाउ यू आर बुकिंग द प्रॉफिट, हाउ यू आर ट्रेडिंग द स्टॉक प्रॉफिट। ठीक है, आई अंडरस्टूड दीज थिंग्स आफ्टर 4 years ऑफ एंड ऑफ द डे बैक टेस्ट। 4 साल, you can imagine कि 4 साल you cannot take a trade in the market because you don't have any extra money, but you are just writing it down on the Excel sheet। ठीक है, 4 साल आप अपनी जॉब से आते हो, एंड ऑफ द डे बैठते हो, उसको नोट डाउन करते हो, उसको एनालाइज करते हो मंथ आफ्टर मंथ। लोग दो दिन के अंदर लोग बोर हो जाते हैं इस चीज से। मैंने 4 महीने किया है, सॉरी 4 साल किया मैंने इस चीज। और इतना सब कुछ करने के बाद when I went live in February 2017, I was not able to hit the first stop loss। ठीक है, because end of the day I was not prepared कि real market के अंदर stop loss कैसे लेना है। So trading is not that easy। ठीक है, so what I'm trying to make you understand is कि before you start trading आपको समझना पड़ेगा कि आपको पैसा कितना चाहिए। लेट्स से आपको 10 लाख रुपया चाहिए। अब इस 10 लाख रुपए से यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपकी प्रोबेबिलिटीज कितनी है। प्रोबेबिलिटीज का मतलब है अगर आप 100 टाइम ट्रेड्स लोगे तो कितनी बड़ी विन करोगे और कितनी बड़ी लूज करोगे। देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जितनी बड़ी मैं विन कर रहा हूं मेरा रिवॉर्ड कितना है, व्हाट इज माय रिवॉर्ड। एंड जितनी बड़ी मैं लूज कर रहा हूं
मेरा रिस्क कितना है, मेरा लॉस कितना है। एंड जितनी बारी मैं ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूं, मेरी कैपिटल 10 लाख की है, पर मैं अपनी 10% कैपिटल यूज कर रहा हूं, 20% कैपिटल यूज कर रहा हूं, या अपनी 30% कैपिटल यूज कर रहा हूं, एक टाइम पे मेरी मैक्सिमम कितनी ट्रेड्स ओपन है। So that is where these terms come from. You have to understand probability. You have to understand risk management. That is your risk versus your reward. And finally, अगर आपके पास 10 लाख रुपए है या लाख रुपए है या फिर 50 लाख रुपए है, आपने एक ट्रेड के ऊपर कितना पैसा यूटिलाइज करना है, that is going to be your position sizing. And by the end of this particular presentation you will understand कि अगर आपको ये तीन चीजों का कॉम्बिनेशन समझ में आ गया, आप एक कॉइन टॉस के थ्रू भी मार्केट के अंदर पैसा कमा सकते हो, एक बैड सिस्टम से भी आप पैसा कमा सकते हो अगर आपको ये तीन चीजों का कंसेप्ट। ठीक है, कोई क्वेश्चन है यहां तक? नहीं तो मैं आगे चल रहा हूं। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स एन एक्सेल शीट, जहां पर हम लोग एक गेम ऑफ क्वाइन टॉस करेंगे। ठीक है, गेम ऑफ क्वाइन टॉस का क्या मतलब है, जो क्वाइन होता है ना वो एक अनबायस्ड क्वाइन होता है। अनबायस्ड क्वाइन का मतलब है अगर मैं उसको एक बारी ऊपर की तरफ को स्पिन करूंगा, इट इज गोइंग टू गिव मी अ 50-50 प्रोबेबिलिटी, 50% विन प्रोबेबिलिटी की हेड आएगा, 50% ऑफ द टाइम टेल आएगा। इट कैन बी 47-53, इट कैन बी 48-52, इट कैन बी 40-60 ऑल्सो। ठीक है, बट इट इज एन अनबायस्ड क्वाइन। सिर्फ एक लक के बेसिस पे भी अगर मैं ट्रेड लेता हूं विद गुड रिस्क मैनेजमेंट, विद गुड पोजीशन साइजिंग, तो मेरी ट्रेडिंग का क्या बनता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ये एक एक्सेल शीट है। ठीक है, इसके अंदर वी आर गोइंग टू एनालाइज, हमने यहाँ पे 100 ट्रेड्स लेके रखी हुई है। ठीक है, अगर यहाँ पे हमने आउटकम लिया हुआ है आइदर हेड आइदर टेल। ठीक है, क्वांटिटी हमने स्टॉक की एज्यूम की हुई है दैट इट इज 100, इट इज यूनिफॉर्म। नाउ हमने क्या किया हुआ है, मैंने इस पर्टिकुलर सी कॉलम के ऊपर इन दिस पर्टिकुलर एक्सेल शीट मैंने रैंडम का फंक्शन लगा दिया हुआ। ठीक है, रैंडम का फंक्शन लगाने से क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, यहां पे मैंने एक रैंडम का फंक्शन लगाया हुआ है। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे random between 0 and 1, so every time there is any changes made to this particular site, ये जो 100 ट्रेड आउटकम्स है ना, यहाँ पे 0 and 1 अपने आप आ जाएगा। बेसिकली एक तरीके का क्वाइन टॉस हो जाएगा। ठीक है, जिसके अंदर या तो 0 आएगा या 1 आएगा। सो इफ इट इज 0 इट इज हेड, इफ इट इज 1 इट इज टेल। ठीक है, स्टॉक की क्वांटिटी मेरी 100 है। अब मैंने इसके अंदर क्या किया हुआ, मैंने एक कंडीशन लगा दी हुई है, अगर तो हेड आएगा इसका मतलब माई ट्रेड हैज रिजल्टेड इन अ विन। ठीक है, अगर टेल आएगा तो मेरा लॉस होगा। तो अगर हेड आएगा, एवरी टाइम देयर इज अ हेड आई विल अर्न 100 रुपीज, एंड एवरी टाइम टेल्स आता है आई विल लूज 100 रुपीज। तो सी व्हाट हैपेंस, जैसे मैं यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 1 रुपए का स्टॉप लॉस ले रहा हूँ और 1 रुपए का रिवॉर्ड ले रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे इसको एंटर मारता हूँ और इस फॉर्मूले को सब जगह पे लगा देता हूँ, सी व्हाट हैपेंस, मेरे हेड आए 51 टाइम्स। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। ठीक है, मेरे हेड आए 51 टाइम्स और टेल आए 49 टाइम्स। ठीक है, इवन यहां पे मैं 100 लूज कर रहा हूं और यहां पे सी यहां पे क्या हुआ एकदम से। ठीक है, बिकॉज मैं 100 विन कर रहा हूँ 100 लूज कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे नंबर ऑफ लॉसेस ज्यादा है, दैट इज वाई मेरी ये जो नेट प्रॉफिट है यहाँ पे -40,000 पे चला। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मेरी विनिंग रेशियो इज 48%, माई लूजिंग रेशियो इज 52%, बट मेरा रिस्क रिवॉर्ड क्या है, यहाँ पे मेरा रिस्क भी 1 था, मेरा रिवॉर्ड भी 1 था। ठीक है,
अब सिमिलरली यहाँ पे जब विनिंग 54 टाइम्स हुई, मैं अपने आप प्रॉफिट में चला। एंड दिस इज आई एम टॉकिंग जब मेरा रिस्क रिवॉर्ड 1:1 का है। अगर मैं यहाँ पे अपना P&L पॉइंट्स कि अगर मैं विन करूंगा 90 पॉइंट्स विन करूंगा, बट अगर मैं लूज करूंगा सिर्फ 30 पॉइंट्स लूज करूंगा, अगर मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, what you will see is, see what happens, even when मेरी विनिंग परसेंट सिर्फ 51% की है, मैं नेट प्रॉफिट में बैठा हूँ। इवन व्हेन मेरी विनिंग परसेंट 60% है, मेरा नेट प्रॉफिट है 4,20,000। अगर मैं यहाँ पे 30 रुपीज लूज कर रहा हूँ और यहाँ पे 60 रुपीज गेन करता हूँ, देन व्हाट हैपेंस, इवन जब मेरी विनिंग प्रोबेबिलिटी सिर्फ 47% है, मैं 47 टाइम्स टॉस जीता हूँ, 53 टाइम्स लूज किया हूँ, मेरा प्रॉफिट 1,23,000 है। अगर मैं इसी को 1:1 कर दूं, यहाँ पे 30 लूज कर रहा हूं और 30 विन कर रहा हूं, सी व्हाट हैपेंस। अब मेरा रिस्क रिवॉर्ड 1:1 है, स्टिल बिकॉज थोड़ा सा ज्यादा है 52%, आई एम मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ, यहाँ पे भी मेरे को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, 50-50% प्रोबेबिलिटी के ऊपर मेरा नेट प्रॉफिट इज 0। व्हाई? बिकॉज 1 रुपया जीतता हूँ, 1 रुपया लूज कर देता हूँ, 1 रुपया जीतता हूँ, 1 रुपया लूज कर देता हूँ। बट अगर यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, लेट्स से 50 एंड 30 -30, सी व्हाट हैपेंस, यहाँ पे इसको 50 कर दिया, अब 50 में विन कर रहा हूँ और 30 लूज कर रहा हूँ। इवन व्हेन मेरी विनिंग परसेंटेज कम है, आई एम गोइंग टू मेक प्रॉफिट, बिकॉज इज इक्वल टू 58 मल्टीप्लाई बाय 50 multiply by 100, that is equal to 2,90,000, and is equal to 42 multiply by 48 multiplied by -30, जो मैं लूज कर रहा था। मैं स्टिल यहाँ पे नेट प्रॉफिट 2,29,520 पे रहूँ। तो ये सिर्फ एक क्वाइन टॉस का एग्जांपल है, वेयर यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर सिर्फ मैं अपना रिस्क रिवॉर्ड, ये वाला पोर्शन जो है, अगर इसको एक कंट्रोल कर लूं और उस रिस्क रिवॉर्ड के बेसिस पे मैं 3 टाइम्स वन टाइम का रिस्क ले रहा हूं और 3 टाइम्स का रिवॉर्ड ले रहा हूं, और लेट्स से मेरी जो प्रोबेबिलिटी है वो अगर 40% भी है, you have a very good chance of making net profit from the market, but provided you have to take those 100 trades। 100 ट्रेड लेने का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि आपने 1 लाख से ट्रेड करना स्टार्ट किया और आप बोलो कि मैं अपनी एक ही ट्रेड के अंदर 10,000 का लॉस कर लूंगा। दैट मीन्स अगर आपकी कैपिटल लेट्स से 100,000 की है, 1 लाख की कैपिटल है, यू कैनॉट टेक अ लॉस ऑफ ₹10,000, बिकॉज 10,000 का लॉस लेने का मतलब है कि अगर आपकी 10 ट्रेड्स भी गलत हो गई, आर रॉन्ग, यू विल बी आउट फ्रॉम द मार्केट। तो यहां तक तो हम लोगों ने ये चीज समझी कि व्हाट इज द विनिंग प्रोबेबिलिटी, हाउ डज इट अफेक्ट योर ट्रेडिंग। यहां से हमने समझा व्हाट इज द रिस्क मैनेजमेंट। लास्ट में आ जाता है पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग का मतलब है कि अगर आपकी ट्रेड गलत हो जाती है, कैन यू सर्वाइव इन द मार्केट इफ 30% ऑफ द टाइम और 40% ऑफ द टाइम यू स्ट्रेट अवे हिट अ स्टॉप लॉस। दैट इज द जिस्ट ऑफ winning probability, risk management and position sizing। ठीक है? Are you guys getting what I'm saying? ये चीज देखने में थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगती है, पर इतनी कंफ्यूजिंग है नहीं। आपको सिर्फ एक बात समझनी है, that one thing is that there are 100 trades, in 100 trades में से let's say 60 will win and 40 will lose। when you are winning for the 60 times, you are taking benefit of 10 points। when you are losing 40 times, you are taking a loss of 5 points। ठीक है? that means आपने 60 टाइम जब विन किया, you made 60 into 10, और जब आपने लूज किया, आपने लूज किया -5 into 40, that is equal to a net profit of 400 points। this is how trading works। अगर यहाँ पे मैं इसको अभी 50 भी कर दूं ना यहाँ पे कि लेट्स से 50 टाइम्स आई एम विनिंग एंड 50 टाइम्स आई एम लूजिंग, ठीक है? सी व्हाट हैपेंस, यहाँ पे मैं इसको 50 से कर दूं,
और नीचे इसको यहाँ पे 50 कर दूंगा। आई एम स्टिल इनटू प्रॉफिट ऑफ 250 पॉइंट्स। यहां से अपनी विनिंग परसेंटेज 40 कर दो, लूजिंग परसेंटेज 60 कर दो। व्हाट यू विल अंडरस्टैंड इज कि अगर आप सिर्फ 40% ऑफ द टाइम भी ठीक होते हो ना, यू कैन मेक अ नेट प्रॉफिट प्रोवाइडेड आपका रिस्क रिवॉर्ड सही है। अगर रिस्क रिवॉर्ड एंड प्रोबेबिलिटीज आर नॉट राइट, देन यू आर अल्टीमेटली गोइंग टू मेक लॉस, एंड दैट इज व्हाट मैक्सिमम पीपल डू। उनको पहले अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटी नहीं पता, एंड देन व्हेन दे टेक अ ट्रेड, 2 रुपए का प्रॉफिट ले लेंगे, 10 रुपए का स्टॉप लॉस ले लेंगे। यू ठीक है, सो सी इट लाइक दिस हियर। वो क्या करेंगे, जब उनको प्रॉफिट हो रहा होगा दे विल टेक अ प्रॉफिट ऑफ लेट्स से 20 रुपीज, एंड जब उनको लॉस हो रहा होगा दे विल टेक अ लॉस ऑफ 40 पॉइंट्स। ठीक है, नाउ इस तरह के सिस्टम में वेयर यू आर लूजिंग मोर, आप कुछ मर्जी कर लो, यू आर नॉट गोइंग टू मेक प्रॉफिट। मैं जितनी मर्जी बड़ी इसको चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कुछ मर्जी चेंज कर दो, आप प्रॉफिटेबल नहीं होने वाले। पर द मोमेंट आप इन ऑड्स को रिवर्स कर देते हो कि आई हैव टू लेट्स से मेक 30 रुपीज, बट मैं लॉस लेने वाला हूँ सिर्फ 10 पॉइंट्स का, आपने अपना रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे 1:3 का कर दिया, यहाँ पे आपने PNL 30 कर दिया, और यहाँ पे आपने 10 कर दिया, यू आर इमीडिएटली गोइंग टू टर्न प्रॉफिटेबल। बट द पॉइंट इज इसको 100 बारी करने की एक लगातार करने की एक टेंडेंसी होनी चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर वो डिसिप्लिन नहीं है, दैट इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, सो ये एक सिंपल क्वाइन टॉस की एक्सरसाइज है, एक रैंडम नंबर की एक्सरसाइज है कि अगर आप अपना इफ यू आर कीपिंग योर विनिंग प्रोबेबिलिटी एट 50%, ठीक है, और अगर आप एक 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ भी वर्क करते हो, आपको कोई प्रॉफिटेबल होने से नहीं रोकता। Have you ever seen those analysts in the market जो कहते हैं कि हम लोग एस्ट्रो पिक्स देते हैं, आज बृहस्पति बहुत अच्छा चल रहा है एंड यू कैन बाय हिंडाल्को बिकॉज इट इज गुड फॉर मेटल स्टॉक्स। हाउ इज दैट पर्टिकुलर गाय प्रॉफिटेबल एट द एंड ऑफ द डे? मतलब ग्रहों का यहाँ पे स्टॉक प्राइस से क्या लेना देना है? नथिंग। इट हैज एवरीथिंग टू डू विद दिस probability, position sizing and risk reward, nothing else. वो हिंडाल को आपको बता देगा कि 130 पे बाय कर लो, 128 के ऊपर इसका स्टॉप लॉस लगा देना, 140 के ऊपर उसका टारगेट ले लेना। सो व्हाट ही डिड वाज, उसने वहां पे आपको 2 रुपए का रिस्क रखा, 10 रुपए का रिवार्ड रखा, आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:5 आ गया। Even if you are profitable in such system with 30% accuracy, you are going to make money. That is the holy grail of trading system. It is not indicators, it is not some particular method, it is this. यहाँ पे मैं एक सिनेरियो की बात करता हूँ, when the winning probability is 49%, quantities are random between 50% to 100% and risk reward is 1:0.7. आपने जब क्वांटिटीज को रैंडम रखा हुआ था, जब आपकी पोजीशन साइजिंग गलत थी, यहाँ पे you were making a loss in this particular system because आपने quantities random रखी। दूसरा, आपका रिस्क रिवॉर्ड गलत था। अब सेकंड सिनेरियो को देखो, आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 60% है, कहने का मतलब है, एंड 60% इज अ डैम गुड विनिंग प्रोबेबिलिटी फॉर एनी टेक्निकल एनालिसिस। आपका रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे 1:0.7 है, फिर भी ठीक है, बट आपकी क्वांटिटीज फिर रैंडम है यहाँ पे, ठीक है, दैट मीन्स आपकी पोजीशन साइजिंग गलत है। Still you are not making a profit here. What is the reason? Reason is आपकी पोजीशन साइजिंग खराब है, आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी अच्छी है, रिस्क रिवार्ड सो है, बट बिकॉज ऑफ पोजीशन साइजिंग यू आर स्टिल मेकिंग लॉस। इसी चीज को इसी चीज को जब आपने यहाँ पे पोजीशन साइजिंग को फिक्स कर दिया, पोजीशन साइजिंग का मतलब क्वांटिटी नहीं होता, इसका मतलब वैल्यू होता है। विनिंग प्रोबेबिलिटी 60%, फिक्स क्वांटिटी 100, और आपने इसका रिस्क रिवॉर्ड 1:0.7 रखा है, you turn profitable in that particular. इसी के अंदर आप सिनेरियो 4 देखो, सब कुछ सेम है, सब कुछ, सिर्फ आपने रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा अच्छा कर दिया। अच्छा कैसे कर दिया? पहले आप रिस्क ले रहे थे एक रुपए का और प्रॉफिट ले रहे थे 70 पैसे का,
यहाँ पे आपने क्या किया, आप 1 रुपए का रिस्क ले रहे हो, 1 रुपए का प्रॉफिट ले रहे हो, क्वांटिटी फिक्स रखी हुई है, विनिंग प्रोबेबिलिटी 60% है, आपके प्रॉफिट में देखो कितना फर्क पड़ गया। बट ऑल दिस इज गोइंग टू फेल इफ यू डू नॉट हैव अ discipline to follow your system for 100 trades. 10 ट्रेड्स का कोई सैंपल साइज नहीं होता, 20 ट्रेड्स का कोई सैंपल साइज। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि आप मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आ रहे हो एंड वेदर इट इज गोइंग टू वर्क और नॉट, यू हैव टू वर्क ऑन दीस 100। ठीक है, डिसिप्लिन के बिना एवरीथिंग इज अ फेलियर। एंड आई कैन टेल यू विद एक्सपीरियंस, डिसिप्लिन सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। ठीक है, जब आपका अपना कमाया हुआ पैसा मार्केट के अंदर लग रहा होता है और मार्केट इस तरीके से आपको बोलती है कि टेक अ स्टॉप लॉस, बड़े बड़ों के हाथ कांप जाते और फिर उनको वही पोजीशन वहां से उनको और लॉस में जाती देखनी पड़ती है और फिर वो यहाँ पे जाके काटते हैं। ठीक है, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, व्हाट इज द रोड मैप टू ट्रेडिंग। ठीक है, सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके पास ट्रेडिंग कैपिटल कितनी है, but based upon the trading method that you are going to use, whether you are going to use RSI, MACD, उसके बेसिस पे आपको एक्चुअल में ट्रेडिंग कैपिटल चाहिए कितनी। 20,000 से ट्रेडिंग नहीं होती, 20,000 से गैम्बलिंग होती है। एटलीस्ट 3-4 लाख रुपए चाहिए होता है, 1 लाख 2 लाख चाहिए होता है। ठीक है, दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग इज आपको अपना ट्रेडिंग स्टाइल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ट्रेडिंग स्टाइल आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या होता है, आपको किस इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना है। ठीक है, आपको स्टॉक्स में करना है, आपको फ्यूचर में करना है, आपको ऑप्शंस में करना है। आपको अपना ट्रेडिंग टाइम फ्रेम पता होना चाहिए। आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है आपको 5 मिनट के ऊपर ट्रेडिंग करनी पड़ेगी या 1 मिनट के ऊपर ट्रेडिंग करनी है। आपको टाइम फ्रेम डिसाइड करना पड़ेगा। टाइम फ्रेम का मतलब है मैं 1 दिन ट्रेड होल्ड करने वाला हूँ, 5 दिन होल्ड करने वाला हूँ, 10 दिन होल्ड करने वाला हूँ। दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड वेरी इंपॉर्टेंटली। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि मेरे को आज प्रॉफिट मिला तो आज एंड ऑफ द डे में निकल जाऊंगा, अगर आज नहीं मिला तो मैं इंडेफिनिटली होल्ड करूंगा, तब तक चाहे स्टॉक प्राइस नीचे जाता रहे, जिस दिन ऊपर जाएगा उस दिन सेल करेंगे। दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रेडिंग। ठीक है, 100 ट्रेड के ऊपर व्हाट इज योर विनिंग प्रोबेबिलिटी, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई। फाइनली व्हेन इट कम्स टू पोजीशन साइजिंग, आपको लॉस कितना लेना है पर ट्रेड। आई सजेस्ट आपको अपना पर ट्रेड लॉस टोटल कैपिटल का 1% से कम रखना चाहिए। आई यूज 0.3%। तो अगर आपकी 1 लाख की कैपिटल है, डू नॉट रिस्क मोर देन 300 to 1,000 rupees on one trade. That way, even if you're wrong 30% of the time, you will still be in the game, so that जब मार्केट टर्न करनी शुरू करती है आपकी डायरेक्शन में, यू आर नॉट एक्चुअली मेकिंग लॉस। एंड ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि आपको 1% ही लूज करना है, ये 0.3% लूज करना है। बेस्ड अपॉन योर विनिंग प्रोबेबिलिटी यू हैव टू डिसाइड कि मेरी विनिंग परसेंट अगर 50% है तो मुझे कितना लॉस लेना और कितना रिवॉर्ड लेना। ठीक है, और ये जो मैंने आपको रिस्क रिवॉर्ड के रूल्स बताए हैं ना, ये फ्यूचर, इक्विटीज, कमोडिटी, फॉरेक्स, ये हर कहीं पे एप्लीकेबल होंगे, हर तरह के इंडिकेटर्स के ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है, हर तरह के टाइम फ्रेम के ऊपर एप्लीकेबल। ठीक है, सो व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग, जो आपकी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग है, इट इज गोइंग टू बी अबाउट द स्ट्रेटेजी विद आइडियल विन प्रोबेबिलिटी, आइडियल पोजीशन साइजिंग, आइडियल रिस्क रिवॉर्ड। एंड इन तीनों पॉइंट्स को फॉलो थ्रू करने के लिए आपका एक इमोशनल साइक एज अ ट्रेडर होना चाहिए कि मुझे अपना स्टॉप लॉस इस पर्टिकुलर टाइम पे लेना है। अगर आपका इन तीनों चीजों में से कोई भी एक चीज इज नॉट गुड, आपकी ट्रेडिंग सक्सेसफुल नहीं होने वाली। आई कैन गिव यू गारंटी फॉर दिस। एंड सारी की सारी होली ग्रेल स्ट्रैटेजी दैट वर्क्स एवरी टाइम, वो सारी इस चीज के अंदर है। इट इज नॉट इनटू एनी इंडिकेटर और मूव। अगर ये चीज समझ में आती है, यू हैव अंडरस्टूड ट्रेडिंग।
क्वेश्चंस? Yeah, Rohit ji, we have a question from Mr. Ashish. Yeah. How do I determine what period to set in indicators? मैंने अभी आपके साथ बात की थी कि यू हैव टू आइडेंटिफाई योर टाइम फ्रेम। मैं एक बेसिक चीज बता देता हूं आपको। जितने लोग ज्यादा यंग होते हैं उतना उनकी टेंडेंसी होती है कि हमें इंट्राडे ट्रेड करनी है, ठीक है। कॉलेज से निकले होते हैं, उनको लगता है कि दे कैन सिट इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर फ्रॉम 9 to 3:30 PM एवरी डे एंड दे कैन जस्ट ट्रेड इन द मार्केट, शाम को ऐश करेंगे। वो लोग अपना इंट्राडे चूज करते हैं। देन दे आर पीपल जिन लोगों को अपने फोन देखने का भी टाइम नहीं मिलता, दे आर इनटू ऑफिसेस। ऐसे लोग अपनी इन्वेस्टिंग करते हैं या फिर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। फिर देयर आर पीपल जिनके पास लैपटॉप्स होते हैं, ऑफिस में अलाउड होता है, वो लोग बीच बीच में अपना मार्केट को देखते रहते हैं। जैसे मैं हूँ, मुझे बहुत काम करने होते हैं, मुझे स्टडी भी करनी होती है, मुझे मार्केट भी देखनी है, मुझे अपने एल्गोरिथम्स भी देखने हैं, मुझे क्लाइंट्स भी डील करने हैं। तो मैं अपने लिए 2 आवर का टाइम फ्रेम प्रेफर करता हूँ। मेरी जो ट्रेड होती है वो 2 आवर से लेके 6 दिन तक भी चली जाती है। मेरी ट्रेड डेली के ऊपर रहती है जो 1 डे से लेके 30 डेज तक भी चल जाती है। बट मुझे एक फ्रीडम मिल जाती है कि मेरे को सिर्फ मार्केट दिन में 3 बारी देखनी है, 3 टाइम्स। एक बारी मैं 11:15 बजे देखता हूँ, एक बारी मैं 1:15 बजे देखता हूँ, एक बारी मैं क्लोजिंग टाइम में 3:15 पे देखता हूँ, एंड आई एम डन। अब वही बंदा अगर इंट्राडे के ऊपर कर रहा है, वो हर 5 मिनट का चार्ट देखेगा। अगर कोई और ज्यादा स्कैल्पिंग कर रहा है, अगर 1 मिनट का कर रहा है, उसको जुड़ के बैठना पड़ेगा। Even if he has to go for the toilet, he will have to take his laptop with him. तो ये आपका शेड्यूल बताएगा कि आप क्या। अब कई रिटायर्ड बंदे हैं 58 के बाद, दे हैव प्रॉब्लम लुकिंग एट द स्क्रीन, तो वो इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते। सो दे हैव टू बाय द स्टॉक्स एंड कीप इट फॉर लेट्स से 30 डेज। तो उनका टाइम फ्रेम डिसाइड करता है कि इंडिकेटर का टाइम फ्रेम क्या हो। कई लोग ऐसी भी ट्रेडिंग करते हैं जहां पे उनका डिसीजन लेने का टाइम फ्रेम जो होता है वो 2 आवर का होता है, ठीक है। बट वो स्टॉक को मॉनिटर करना शुरू कर देते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, 15 मिनट के ऊपर, 1 आवर के ऊपर, 2 आवर के ऊपर, एंड फाइनली 1 डे के ऊपर भी देखते हैं। तो ये अपना सिस्टम है जो एक बनाना पड़ेगा, बट अल्टीमेटली जो थ्योरी है वो सारी इसी जगह पे आके खत्म हो जाएगी कि वो सिस्टम बनाने के बाद आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या बन रही है, आपकी पोजीशन साइजिंग क्या बन रही है, आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना है, वो चीज डिसाइड करेगी। Rohit ji, another question from Mr. Rajesh Kumar. और उनको पोजीशन साइजिंग के बारे में जानना है, कुछ एग्जाम्पल के संग अगर हम बता सकते हैं तो। एग्जाम्पल के केसेस में मैं एक बता देता हूँ, ठीक है। मुझे अपने केस में, अपने पर्टिकुलर केस में, ठीक है, मैं अपना एग्जांपल ले रहा हूँ इस टाइम। मैं जब इक्विटी के स्टॉक्स को मोमेंटम के ऊपर ट्रेड करता हूँ, ठीक है, मैंने इतना देखा हुआ है कि मोटा मोटा मेरा सिस्टम एट वन टाइम आउट ऑफ 140 FNO स्टॉक, सॉरी 200 FNO स्टॉक, 200 FNO स्टॉक्स, 10 या 12 स्टॉक्स होते हैं जो मुझे एंट्री देते हैं, ठीक है। अब उन 10 स्टॉक्स के अंदर मुझे ये नहीं पता कि कौन सा स्टॉक जो है वो 20% अप जाएगा, कौन सा स्टॉक जो है मेरा 2% का स्टॉप लॉस हिट करे, ठीक है। पर मुझे इतना पता है कि जिसको मैं लूंगा उसके चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं कि वो 100 से 130 भी जा सकता है, 140 भी जा सकता है, या फिर 100 से 95 आके मेरा स्टॉप लॉस हिट कर सकता है। मुझे इतना पता है, कौन सा है वो मुझे नहीं पता। तो अगर मेरी 10 लाख की कैपिटल है, व्हाट आई विल डू इज, मैं अपना पोजीशन साइजिंग 1 लाख का रखूंगा कि मुझे एक स्टॉक के ऊपर 1 लाख रुपया लगाना है, सो डैट अगर मेरे पास अगले स्टॉक के ऊपर एंट्री आनी शुरू हो गई तो मेरे को ये ना हो कि मेरे को पता चले कि मेरे पास पैसा ही नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन सा रन कर जाएगा। कल को ऐसा हो सकता है, मान लो मैं 2 लाख का स्टॉक खरीद लूं और 5 स्टॉक खरीद लूं और पांचों के पांचों स्टॉप लॉस दे जाए,
और जो 6वां स्टॉक था जिसने मेरा सारा लॉस कवर करना था उसको लेने के लिए मेरे पास पैसा ही नहीं है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? आपने रोटोमैक खरीद लिया, ठीक है, आपने पजानी खरीद लिया, आपने रेनॉल्ड्स का सिंपल वाला पेन खरीद लिया, और आपने एक और कोई चलता फिरता पेन खरीद लिया, और बाद में आपने देखा कि मेरे यहाँ पे लोकेलिटी में डिमांड तो चल रही है बटरफ्लो की। अब आपने सारे पैसों से खरीद तो लिया रेनॉल्ड्स का, बटरफ्लो खरीदने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। तो इस तरीके से आपको पोजीशन साइजिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, अगर मैंने 1 लाख का स्टॉक खरीदा है, दैट मीन्स उसके ऊपर मैं लॉस भी 1000 का लेने वाला हूं, उससे ज्यादा नहीं लेने वाला, या 2000 लेने वाला हूं या 3000 लेने वाला हूं, उससे ज्यादा नहीं, 1% ऑफ द टोटल कैपिटल। ये भी मुझे डिसाइड करना है। ठीक है, सो आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरी विनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है। मैं 60% टाइम ऑफ द विन करता हूं। जो मेरे स्टॉक्स हैं, अगर मैं 50 स्टॉक्स को मॉनिटर कर रहा हूं, ठीक है, मुझे एंट्री कितनों में आती है। अब ये भी तो हो सकता है कि आपका जो कैपिटल साइज है 10 लाख का है, ठीक है दीपक जी, आपको ये पता है कि आपने एक ट्रेड के ऊपर 10,000 से ज्यादा का लॉस नहीं लेना, ठीक है। अब आप ये नहीं कर सकते उसके अंदर कि यार बिकॉज मेरे को 3 ही एंट्रीज मिलती है तो मैं 3.5 लाख रुपए की ले लूंगा, नहीं। आपको ये भी तो देखना है कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अब जब इस चीज के बारे में बात चल पड़ी है ना, तो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। 10 लाख के ऊपर आपका स्टॉप लॉस आ रहा है 10,000, ठीक है। आपको ये पता है कि आपको सिर्फ 3 एंट्रीज मिलेंगी, 3.5 लाख की, 3.5 लाख की और 3.5 लाख। आपको एक स्टॉक बाय करने को मिल रहा है 1000 रुपए का, ठीक है। इस 1000 रुपए के स्टॉक की आप एट ₹1000 आप 350 क्वांटिटी ले सकते हो, ठीक है। आपका एस्टिमेट क्या है कि ये 1000 से कितना चला जाएगा, 1100, ठीक है। बट एट द सेम टाइम ये रहा आपका टारगेट, पर इसके ऊपर स्टॉप लॉस कितना आ रहा है आपका, इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस आ रहा है चार्ट के अकॉर्डिंगली 60 पॉइंट्स का। 60 पॉइंट्स का मतलब क्या है, 350 इंटू 60, 0 0 6 5 30 6 3 80, आपका 21,000 का स्टॉप लॉस आ रहा है। और आपका इस 21,000 के अगेंस्ट रिवॉर्ड कितना है, 100 पॉइंट का, डेट इज 35,000। पर हमने स्टार्टिंग में क्या डिसाइड किया था कि हमें अपनी टोटल कैपिटल का 10,000 से ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं लेना, बिकॉज फिर आप क्या कर रहे हो, अपनी प्रोबेबिलिटी, रिस्क रिवॉर्ड, पोजीशन साइजिंग, ये मिक्स खराब कर रहे हो फिर आप यहाँ। दैट मीन्स दिस इज द टाइप ऑफ ट्रेड यू हैव टू इग्नोर। अगर यहीं पे मेरा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट्स का आ रहा होता, दैट मीन्स मेरा रिस्क जो है वो 10,000 से कम का है, मेरा रिवॉर्ड 35,000 का है, आई शुड गो फॉर दिस पर्टिकुलर। दिस इज हाउ इट वर्क्स इन द इजीएस्ट ऑफ वे आई कैन एक्सप्लेन इट दिस वे। वेल एक्सप्लेन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मिस्टर आशीष। थोड़ा हटके क्वेश्चन है रोहित जी, ये पूछ रहे हैं आशीष जी कि जो वेबसाइट्स हैं कुछ जो टेक्निकल एनालिसिस देती हैं, उनको आप कितना मतलब कितना ट्रस्ट करना चाहिए एज ए ट्रेडर? जब तक आपको ये नहीं समझ में आता कि जिस पर्टिकुलर ट्रेडर ने, जिस कंपनी के बंदे ने आपको वो जब टेक्निकल एनालिसिस की ट्रेड पकड़ाई है, वो कह देता है हिंडाल्को बाय करो 150 पे, इसका स्टॉप लॉस लगा दो 146 पे, ठीक है, और इसका टारगेट है 170 का, ठीक है। आप एक मोटी मोटी कैलकुलेशन करो, मेरा स्टॉप लॉस आ रहा है 4 पॉइंट का, मेरा टारगेट आ रहा है 20 पॉइंट्स का, दैट इज माय रिस्क रिवॉर्ड इज 1:5, ठीक है। नाउ 1:5 इज अ वेरी गुड टेक्निकल एनालिसिस, बट डिपेंड किस चीज के ऊपर करता है कि जिस बंदे ने ये आपको ट्रेडिंग कॉल दी है उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है।
विनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है। अगर तो उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी 50% है, इवन 30% है, यू कैन टेक दैट पर्टिकुलर ट्रेड, बट आपको ये पता होना चाहिए। उसको पूछो, अगर वो कह देता है कि इसकी ट्रेड सिर्फ 20% है, आपको वो ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। यू हैव टू आस्क हिम आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है, आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना है, और पोजीशन साइजिंग कितनी है। अगर मेरे पास 10 लाख रुपए है तो मैं कितना इसके ऊपर लगाऊं, कितना मेरा स्टॉप लॉस आएगा, आपका विन कर। जब तक आपको ये तीनों का कॉम्बिनेशन नहीं पता चलेगा, आप नहीं बता सकते कि उस बंदे पे आपको ट्रस्ट करना है कि नहीं। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मैक्सिमम स्टॉक ब्रोकर्स की साइट के ऊपर। हमें यही नहीं पता होता कि एवरीबडी सेज रिसर्च कॉल आई है, रिसर्च कॉल आई है। व्हाट इज द विनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट रिसर्च कॉल? 10 में से 7 फेल भी तो हो सकती हैं। कितना ऊपर जा सकता है, कितना लॉस देगा। और अगर मेरे पास 10 लाख है तो मैं एक तीसरे बंदे की रिसर्च कॉल ले रहा हूं, वाई? जिसने एक लाइन लिख दी कि इसको बाय करो इतने इतने पे, ठीक है, 150 पे बाय करो, 170 पे चला जाएगा, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है कि हम लोग उसके बोलने पे अपना पैसा लगा दे रहे हैं वहां पे विदाउट पूछे कि तेरी विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या है। हालांकि वो विनिंग प्रोबेबिलिटी भी गलत बता सकता है, मुंह से बोल दे 60% विनिंग प्रोबेबिलिटी है, तो वो टेस्टेड तो होनी चाहिए चीज। बट अल्टीमेटली टेस्ट वो ही है, जिसने भी डाला है उससे पूछो व्हाट इज द विनिंग प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द रिस्क रिवॉर्ड एंड व्हाट इज द पोजीशन साइजिंग। आपको अपना आंसर मिल जाएगा कि उसको फॉलो करना है कि नहीं करना। यस। मैं अपने आप जनरली मेरा जो मैं अपनी ट्रेडिंग करता हूं, मेरी 45% की प्रोबेबिलिटी होती है विन करने की, पर मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड होता है वो 1:5 का होता है। 1:5 का मतलब है कि अगर मेरे पास 10 लाख की कैपिटल है, ठीक है, 10 लाख की कैपिटल है, 45 टाइम्स मैं विन करूंगा एंड 55 टाइम्स मैं लूज करूंगा। तो 45 into 5, 225 is my win and 55 is my loss. मेरा नेट प्रॉफिट भी एंड में 100% आएगा इस पर्टिकुलर एक कैलकुलेशन की बेसिस। और ये मैं तब बता रहा हूं जब मेरी विनिंग प्रोबेबिलिटी इज 45। आपको ये मैथ समझना पड़ेगा, विनिंग प्रोबेबिलिटी, रिस्क रिवॉर्ड एंड पोजीशन साइजिंग, एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि ये वर्क करने वाला है कि नहीं। एंड एक मैं आप बात आपको और बता देता हूँ, ठीक है, ये चीज भी आप ढूंढ लोगे कि कैसे वर्क करती है। इसके बाद आ जाता है डिसिप्लिन। अगर आपको विनिंग प्रोबेबिलिटी 40% की मिल रही है ना, दैट मीन्स देयर इज अ 60% लूजिंग प्रोबेबिलिटी। क्या आपकी इतनी हिम्मत है कि आप अपना पैसा लगाओ और देखो कि 60% ऑफ द टाइम मेरा स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, 10 में से 6 टाइम्स मेरा स्टॉप लॉस हिट होने वाला है और मैं उसको ले सकता हूं? क्या आप में इतनी हिम्मत है कि मेरी 20 ट्रेड्स भी गलत हो जाएंगी फिर भी मुझे सिस्टम को ट्रस्ट करना है कि वो टर्न करेगा बिकॉज मेरी विन प्रोबेबिलिटी इज बिग? These are the questions that you need to ask before you enter into trading. Yes. Okay. Rohit ji, yeah, Rohit ji, another question is from Mr. Dilip, और he's asking about the time frame कि इंट्राडे के लिए बेटर टाइम फ्रेम कौन सा हो सकता है, 5 मिनट में या फिर 15 मिनट का? अगेन सिस्टम पे डिपेंड करेगा कि आप क्या बना रहे हो, ठीक है, और आपकी अपनी स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। आइडियली 5 से लेकर 5 मिनट का टाइम फ्रेम ठीक रहता है, ठीक है। 3 मिनट्स का थोड़ा ज्यादा फास्ट हो जाएगा, 15 मिनट का थोड़ा सा और ज्यादा लेट बैक हो जाएगा। सो ये 5 और 15 मिनट आपको कंसल्ट करने पड़े। Okay. Another question from Mr. Pranav, and he's asking how to choose good call and when to exit. कॉल, Yes. आई थिंक वो तो सारी सिस्टम ट्रेडिंग के ऊपर आ जाएगा ना, अभी तो हमने कोई मेथड डिस्कस भी नहीं किया।
उसके बहुत पैरामीटर्स होते हैं। लुक गाइस, टेक्निकल एनालिसिस सेम रहने वाला है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। टर्टल ट्रेडिंग कर लो, RSI ट्रेडिंग कर लो, ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर लो, ठीक है, स्कैल्पिंग कर लो, कुछ मर्जी कर लो। अगर ये जो 3 चीजें मैंने बताई है ना स्टार्टिंग में, प्रोबेबिलिटीज, विन, पोजीशन साइज, रिस्क मैनेजमेंट, अगर ये तीनों का बैलेंस खराब है, नथिंग विल वर्क। चाहे वो ऑप्शंस है, चाहे वो फॉरेक्स है, चाहे कमोडिटी, इट्स एज सिंपल एज दैट। और गाइज यहाँ पे मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि हमने वेबिनार डैशबोर्ड एक दिया हुआ है वेबसाइट पे हमारी, और वहाँ पे एक लास्ट डेज हमने एक टेक्निकल एनालिसिस की वर्कशॉप की थी रोहित जी के साथ ही, और आई गेस कि वहाँ पे ये सारे टॉपिक हमने काफी डिटेल में डिस्कस किए थे। तो वन कैन गो एंड रेफर दैट वेबिनार डैशबोर्ड वीडियोस। और रोहित जी, आज हमारे अटेंडीज में काफी लोग ऐसे भी हैं जो नॉन क्लाइंट हैं सेस ऑनलाइन के। तो गाइज वुड रिक्वेस्ट यू कि इस टाइप की अंडरस्टैंडिंग या ट्रेनिंग हमारे क्लाइंट्स के लिए हम रेगुलर बेसिस पे कराते रहते हैं। तो वुड यू कैन सी कि अगर आप अकाउंट ओपन कराते हैं तो आपको एक कंटिन्यूस प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां से आप एक अच्छी लर्निंग ले सकते हैं विद एक्सपर्ट्स, फ्रॉम एक्सपर्ट्स। इसके अंदर ऐसा है ना दीपक जी, हमने इतनी स्ट्रेटजीज की हैं उसके अंदर, ठीक है, ऑप्शन, इक्विटीज की, स्विंग ट्रेडिंग की, उन सारी स्ट्रेटजीज को जो हमारा सिखाने का मतलब था वो एक ही था कि एट द एंड ऑफ द डे जो भी बंदा ट्रेडिंग करना चाहता है उसको प्रॉफिटेबल कैसे बनाना है, ठीक है। एंड अदरवाइज आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है, एंड लाइक लास्ट टाइम वी हैव जस्ट चोजन कि हम इसको जितना बोरिंग टॉपिक से स्टार्ट करें उससे ज्यादा बेटर है, बिकॉज दिस बोरिंग टॉपिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पर कोई बात नहीं करने वाला आपसे। आप मार्केट में एडवर्टीजमेंट डाल के देख लो, एवरीबडी इज गोइंग टू टेल यू कि मैं इंडिकेटर दे देता हूँ, बाय का सिग्नल दे देता हूँ, सेल का सिग्नल दे देता हूँ, ऐसे आएगा। Nobody will talk about this because this is where the money is. और इसके अंदर मेहनत करनी पड़ती है, खुद बनाना पड़ता है। That is the problem. Just allow me a minute. Okay. Another question is from Mr. Anup Tiwari. Anup जी, आपका क्वेश्चन है which type stock to buy under ₹1 lakh? तो मतलब could you please explain कि what exactly you want to ask? ठीक है, उनको अभी इस पे रिवर्ट करने देते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा मेरे को भी रोहित जी समझ में नहीं आया ये। मुझे समझ में आ गया, बट आई विल नॉट आंसर इट। अच्छा, गाइस, सीरीज का मतलब एक है कि आपको वी हैव टू गिव यू अ वे जहां से आप खुद ही आंसर चूज कर सकते। इसका मतलब है अगर 1 लाख से नीचे का बाय करना है, आई डोंट नो आपके पास टोटल कैपिटल कितनी है, किसी के लिए वो उसकी सारी सेविंग हो सकती है, किसी के लिए उसकी कैपिटल का 10% हो सकता है, ठीक है। अब उसको किस तरीके से आगे डिवाइड करना है, दीज आर द क्वेश्चंस जो सारी हमने इस प्रेजेंटेशन के अंदर बात की है कि क्या करना है। कैन यू अफोर्ड टू लूज इट, और डू यू वांट टू कीप इट सिक्योरली कि मुझे उससे डेट बाय करनी है, मुझे एफडी पे करवाना है, या फिर उससे ट्रेड करना है। अगर उससे ट्रेड करना है तो फर्दर उसको 10,000 के 10 चंक्स में बांट लो और 10 स्टॉक्स पकड़ लो। अब वो 10 स्टॉक्स कोई भी हो सकते हैं, आप चाहे 100 रुपए के शेयर के 100 शेयर खरीद लो, वो भी बात वहीं पे है। आप 3500 रुपए वाली शेयर की आईशर जैसी कंपनी के 3 शेयर कर लो, बात तो वहीं पे है, वैल्यू 10,000 की है। दैट डजंट मेक अ डिफरेंस। अल्टीमेटली आप कितनी कैपिटल लाके कितनी रिटर्न लेना चाहते हो, वो रियलिस्टिक है या नहीं है, कितनी कैपिटल आपको चाहिए, विनिंग प्रोबेबिलिटीज कितनी है, पोजीशन साइजिंग कैसी है, रिस्क मैनेजमेंट कैसी है, दैट इज द वन थिंग दैट मैटर्स। जो मिस्टर तिवारी ने क्वेश्चन पूछा, दैट इज बेसिकली ही इज आस्किंग फॉर सम टिप्स। यस। दैट इज द इजी वे। रोजी, वी हैव कपल ऑफ क्वेश्चंस मोर जो मुझको काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, वो हम लेंगे।
but before that you need a break of let's say 1 minute, और उस break में मैं एक poll launch कर लेता हूँ. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. So guys, there is a poll coming to your screen. बड़ा simple poll है. You just need to answer if yes and no. Will you implement that strategy in the market? जो भी आज हमने learn किया है from Mr. Rohit. Can we have 100% participation, please? So Rohit, we are just closing the session. Couple of questions more for you. बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आप कौन सा चार्ट प्रीफर करते हैं ट्रेडिंग में, और सेकंड एल्गो ट्रेडिंग के बारे में है कि एल्गो ट्रेडिंग काम करता है नहीं करता है, तो प्लीज शेयर समथिंग. फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, मेरा चार्ट जितना ज्यादा सिंपल रहता है मुझे उतना ज्यादा अच्छा लगता है. मुझे क्लटर पसंद नहीं है उसके अंदर. ठीक है, मैं एक या दो इंडिकेटर्स रखता हूँ अपने पास हमेशा. ठीक है, और प्राइस एक्शन के ऊपर ज्यादा बिलीव करता हूँ. इंडिकेटर्स सिर्फ मेरी हेल्प करते हैं, सिर्फ मुझे ये बताने में कि प्राइस एक्शन किस तरीके से वर्क कर रहा है. फॉर एग्जांपल, मैकडी मुझे ये बता देता है कि प्राइस किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसकी मोमेंटम के अंदर स्ट्रेंथ कितनी है. मूविंग एवरेजेस मुझे ये बता देती हैं कि प्राइस अपनी एवरेज से ऊपर की तरफ को अवे चल रहा है या नीचे की तरफ को अवे चल रहा है. ठीक है, बट अल्टीमेटली मैं जितना ज्यादा लेस क्लटर रखना चाहता हूँ उतनी मेरी प्रेफरेंस होती है. एक या दो इंडिकेटर्स, उससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए. अगर आपको कोई दिखाता नहीं कि 4 स्क्रीन लगाई हैं, 3 स्क्रीन लगाई हैं, एक पे ये देख रहा हूँ, एक पे ये देख रहा हूँ, उसको कुछ नहीं पता चल रहा कि वो क्या है. ठीक है, सिंपल तरीके से ट्रेडिंग हो जाती है. आई हैव डन ट्रेडिंग इन दैट टाइम आल्सो, जब आज के टाइम पे सैस के जैसे ब्रोकर्स नहीं होते थे. मैं साइबर कैफे में जाके बैठता होता था, एंड यू वोंट बिलीव, जो ग्राफ वाली कॉपी नहीं होती मैथमेटिक्स की, जिसके ऊपर बच्चे अपनी असाइनमेंट बना के लेके आते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं, 15 मिनट के इंटरवल के ऊपर डॉट लगा के प्राइस लगाते थे और देखते थे कि ये अप ट्रेंड बना रहा है कि डाउन ट्रेंड बना रहा है, मुझे बाय करना है कि सेल करना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है. अब वो सारी चीजें आपके पास हाथ में अवेलेबल है. सो मेरे को सिंप्लिसिटी ज्यादा पसंद है. एक वॉल्यूम चाहिए, एक आधी कोई मूविंग एवरेज चाहिए, एक आधा कोई इंडिकेटर चाहिए, बट ये जो तीन चीजें पकड़ोगे इसके अंदर मास्टरी होनी चाहिए. ये वो इंडिकेटर नहीं जिसको आपने एक बारी पढ़ के एक बारी यूज कर लिया. इट इज लाइक आपने इसको 1000 बारी ऑब्जर्व किया हो, फिर एक बारी यूज करने पे आओ. आपको उसके नुआंसेस पता होने चाहिए. ठीक है, नाउ सेकंड थिंग, एल्गो ट्रेडिंग. या वी डू एल्गो ट्रेडिंग, एंड 2.5 साल से हम लोग एल्गो ट्रेडिंग कर रहे हैं. बहुत से लोगों को हम लोगों ने डिप्लॉय करके दिया है एल्गोरिदम. मैं इंट्राडे ट्रेडिंग खुद नहीं करता. मेरे अकाउंट में जितनी भी इंट्राडे ट्रेडिंग चलती है दैट इज ऑन एल्गोरिदम. व्हाट आई डू इज, इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर एल्गोरिदम अपने अकाउंट में चलने देता हूँ. दैट गिव्स मी सम प्रॉफिट सम लॉस, बट एट द एंड इट गिव्स मी प्रॉफिट. ठीक है, साथ में मैं क्या करता हूँ, अपनी मोमेंटम ट्रेडिंग करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग के थ्रू, इक्विटीज के थ्रू. अब उसका मुझे बेनिफिट ये मिलता है कि अगर तो एल्गो थोड़ा बहुत इधर उधर फ्लैटर कर रहा है कि कहीं थोड़ा बहुत लॉस में है, तो मेरा जो स्विंग पोर्टफोलियो होता है वो प्रॉफिट देना शुरू कर देता है, तो वो इवन आउट हो जाता है. कभी कभी ऐसा होता है कि एल्गो प्रॉफिट दे रहा होता है, मेरा स्विंग प्रॉफिट वो होता है वो लॉस दे रहा होता है, तो वहां से वो इवन आउट हो जाता है. कभी कभी ऐसा होता है कि वो भी प्रॉफिट दे रहा है, एल्गो भी प्रॉफिट दे रहा है, तो मेरी इक्विटी कब एक ऊपर को बढ़ती रहती है. सो मैं उसको इस तरीके से बैलेंस करके चलता हूँ. बट यस, एल्गो ट्रेडिंग इज प्रॉफिटेबल, डिपेंड्स अपॉन कि आप स्ट्रैटेजी क्या डिप्लॉय कर रहे हो, किससे लेके डिप्लॉय कर रहे हो, और उसकी एग्जीक्यूशन कैसी है. मोस्ट ऑफ द स्ट्रैटेजीज जो आप लोगों को डिप्लॉय करने के लिए इंटरनेट पे मिलेंगी,
YouTube पे मिलेंगी वो वर्क नहीं करती बिकॉज ऑलरेडी उसको हर कोई यूज कर रहा है और उसकी एज खत्म हो चुकी है। एंड दैट इज ऑल्सो द रीजन पिछले 1 साल से मैंने स्ट्रेटेजीज डिस्कस करनी बंद कर दी। आप स्ट्रेटेजी डिस्कस करो तो यूट्यूबर और आ जाएंगे उसकी मॉडिफिकेशंस देने के लिए, उनको व्यूज से मतलब है और उसके चक्कर में स्ट्रेटेजी खराब हो जाती है। तो हम अपनी स्ट्रेटेजीज बनाते हैं और अपने क्लाइंट्स के लिए उसको डिप्लॉय करते हैं। Great. So guys, I think we are good as of now. And Rohit ji, thanks for sharing your insights and your knowledge with us. Guys, thanks for joining this session, and would request to keep joining. जो भी हमारे सेशन आएंगे आगे उसको आप ज्वाइन कीजिए, और at the end of the session you will have a feedback form on your screen. So just request you to let us know how do you feel about this session, how do you rank that session. So thanks for joining. Thank you. थैंक यू दीपक जी। Thank you, Rohit ji. Thank you. I'm ending the session. Thanks, guys.